We are so fortunate. Thank you, Sachin. Thank you for sharing your wisdom. Um, and it's always pleasure to have you. Same Today we here. are celebrating India's Independence Day, also 15th August, and the liberty we have it, freedom we have it. We are truly enjoying it. एंड पत्री जी ने हमको सिखाया है कि कैसे एंजॉय करना वो भी. सो थैंक गॉड फॉर दैट. Thank God for meditation, thank God for dhyan, and thank God to Pyramid Valley and PMC, PSSM. All, PSSM. all those are such a fortunate. We are so fortunate to have all that. And Nalini ji, I know she doesn't like to be told, but she's one of the pioneer of PMC and PSSM. She doesn't like to be said, but I'm going to say it anyway. But thank you, Nalini ji, for coming, and please share your wisdom. But before we start the session, we're going to do the Nokar mantra. And Yes. if you can do Gayatri mantra, that will be our pleasure too. Okay. So let's do Once or twice? Once only. whatever you say, doesn't matter to me. Gayatri Mantra once or thrice? आपको twice करना हो, 3 times करना हो, whatever you feel like Okay. doing it, you are most, this whole Okay. platform is all yours. So Okay. yeah, so let me do the Nokar mantra and then Yes. start with the Gayatri mantra, please. Done. Welcome everyone, and let's start our session today a little bit early, few minutes early, because we have a pleasure of Nalini ji joined earlier. So, Namo Arihantanang, Namo Siddhanang, Namo Airyanang, Namo Uvajayanang, Namo Loe Savasahunang, Eso Panchanamo Karo, Savo Pavo Panashano, Manglanancha Savvesim, Padmang Havai Mangalang. Welcome, Nalini ji, please. Om Bhurvaswaha Tatsaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayam. Om Bhurvaswaha Tatsaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayam. Om Bhurvaswaha Tatsaviturbharenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayam. Thank you. Nalini ji. I'm sorry, today my throat is slightly on the naughty side. Yesterday I had cold coffee. Then I had a very great celebration on 15th August, Independence Day, with Aham Brahmasmi. Wow, wow. So till 11, it was on and on and on for 3 hours. Wow, wow. Was it a Avni day? madam was there, Vrinda Was it? madam was there, Wow, wow. and we really had such a wonderful time. Cultural activities, Nice, nice. dancing, singing, masti thi puri. I'm So not surprised. आप होएंगे वहां मस्ती होगी. Yes, yes, तो yes. सुबह भी वही 5 बजे उठ के भागम भागी तैयार होना, ये वो सब. तो Sorry. नींद पूरी नहीं हुई, कॉफी भी अपना असर दिखा रही है. So I see. my apologies, please. No problem. No problem. Sometime every once in a while, you should have that freedom of enjoying the life too. Yes. फ्रेंड्स, सभी ने सुना होगा, ये नारा बहुत पॉपुलर रहा है, क्विट इंडिया. अब आप सोचेंगे पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलिज्म में क्यों घुसा रही है मैडम, पर थोड़ा सा कहते हैं ना साईं बाबा, सबूरी और Saburi. श्रद्धा. तो सबूरी, सब्र रखो, पेशेंस रखो. You'll come to know what I mean to say.
क्विट इंडिया सिर्फ एक नारा था दोस्तों, जो मैंने बनाए अपने नारे, जो वो है क्विट मेडिसिन, क्विट नेगेटिविटी, Yes. क्विट फ्रॉम योर डिजीजेस, क्विट डिपेंडेंसी, बच्चों पे निर्भर रहना, दवाइयों पे निर्भर रहना। सो हेल्प योरसेल्फ, अपनी इनर इंडिपेंडेंस को पहचानो दोस्तों। तो वहां तो सिर्फ एक नारा था, मैंने यहाँ पीएसएसएम को इतने सारे नारे दे दिए। क्विट नॉन वेजिटेरियन, वैसे यहाँ इसका बोलने का कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल so quit non-veg, so quit dependency and quit negativity, quit medicine. These are the most important. So दोस्तों, ये तब भी पॉसिबल है जैसे हम कपड़ा पुराना हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। उसी तरह अपने सोच विचार की दुनिया में भी जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी धारणाएं हैं, उनको निकाल फेंको। और जब तक पुराना नहीं फेंकोगे, नया कैसे आएगा दोस्तों? अलमारियों का साइज तो वही है। So you have to remove your old clothes, remove your old belief systems. अब पहले हम खाकरे खाते थे, आज हम पिज्जा खाते है ना? तो जब इसमें नयापन आ गया, अपने भोजन की व्यवस्था बदल गई, so why not in your thinking, है ना दोस्तों? so आज का जो हमारा बेसिक था 7 experiences. experiences while doing meditation. Let's do that. एक सेकेंड, मेरे यहाँ कुछ पता नहीं क्या आ गया, चला गया। मुझे बहुत डर लगता है कि एक बार अगर खुल जाए मेरा लैपटॉप, तो उसके बाद कुछ अलग से नहीं दिखना चाहिए। सरप्राइज होता है अंदर। बड़ा शॉकिंग सरप्राइज होता है मेरे लिए, बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल। आज ही सुबह मैंने अपनी जब बिटिया से कहा प्लीज ऊपर जाके खोल दो, ओह नो दादी माँ, यू हैव बिकम प्रोएक्टिव, यू विल, आई रियली मैनेज्ड। आजकल मैं कोशिश करती हूँ अपने आप खोल लूं, और खुल भी जाता है। गुड गुड। सो दोस्तों, वाले जो 7 अनुभव है, हम उसकी चर्चा करेंगे आज। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पितामह जब स्वयं ध्यान में बैठा करते थे, तो किस तरह से उन्हें जो जो अनुभव हुए वो लिखते चले गए ध्यान में से निकलने के बाद। उसी का नतीजा है कि उन्होंने हमें ये 7 प्रकार के ध्यान के अनुभवों से परिचित करवाया। इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ, पानी लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, जिससे कि जो भी कुछ समझ पड़ता है, जो भी कुछ अच्छा लगता है, यू कैन नोट इट डाउन। और उससे एक फायदा और क्या है, वी कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अगर कुछ भी लाइन अच्छी लगी, तो कभी भी हम अगर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी डिप्रेशन में गए, आप मेरे को स्पॉटलाइट पे डाल दोगे माँ? एम आई को होस्ट? It should be, or should be. Sachin, he must have made Yes. you. Yes, you are co-host. I Nalini. am co-host, so I'll put it myself. Yes. Yes. थोड़ी सी गंदी आदत पड़ गई है ना अपने आप को देख के बात करने। If you need any help, Sachin can help you out. Okay, thank you. Sachin के Please बच्चे excuse me today for my बच्चे सो गए होंगे अभी, so he should be fine. नहीं, I have done that now.
Good. सो फ्रेंड्स, किस तरह से हमारे पितामह ने अपने अनुभवों को पेन डाउन किया और हमारी लाइफ को इतना इतना इजी कर दिया, हमारे मेडिटेशन को इतना इजी कर दिया कि देखो ना, आज हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि कईयों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों होता है, या मुझे ही क्यों होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो एनालिसिस फॉर थ्री थिंग्स। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एंड व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स। द वेरी फर्स्ट इज कि जो कुछ हमारे को लाइफ मिली है उसके प्रति हमें कोई विश्लेषण नहीं करना है, एनालिसिस नहीं करना है। क्योंकि जो भी कुछ आज हम हैं उसकी बेस हमारी पास्ट लाइफ में बन चुकी थी, और उसी के ही फल है ये। चाहे हम बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं, या हम किसी कष्ट में भी हैं, दोनों का कारण पास्ट लाइफ्स के कर्मास है। सो नो एनालिसिस फॉर योर ओन लाइफ। सेकंड, ड्रीम्स जो आते हैं, सपने, या तो वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, या फ्यूचर लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, या प्रेजेंट लाइफ में जो कुछ घटा और उसका इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ा उससे कनेक्टेड होते हैं। सो अगेन, कोई विश्लेषण नहीं करना। थर्ड, मेडिटेशन में जो भी कुछ घट रहा है या घटनाएं हो रही हैं उसका भी हमें कभी भी एनालिसिस नहीं करना है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। गलत है तो भी मेरे फायदे के लिए, मेरे को कोई लेसन देने के लिए आए, मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट देने के लिए आए, और वो एक्सपेरिमेंट से हम गुजर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो रहा है। सो कभी भी इन तीन बातों को ध्यान में रखिए, लाइफ, ड्रीम एंड मेडिटेशन। इसमें जो भी कोई एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इट्स ऑल फॉर अवर बेनिफिट। इट्स एक्सेप्टेंस में रहो और मुस्कुरा के, अरे बाबा, जब समय, अभी हमने जब शुरू किया था तो मेरी घड़ी के अनुसार 6 में 5 की देरी थी, परंतु अब सुई का कांटा जो धीरे धीरे बदलता जा रहा है टाइम, तो समय रुकता नहीं। बहते हुए नदी का पानी कभी रुकता नहीं, हर चीज यहाँ पे परिवर्तनशील है। सो फ्रेंड्स, कीप मूविंग अहेड, और जो मूविंग अहेड है वो ही असली एनर्जी है। जो पिछले कल, आगे वाले कल में बैठे हैं वो तो फिर स्टक अप हो गए। रिमेंबर दिस। सो वी हैव टू कीप मूविंग। हमारे जो सोसाइटी है उसका, संस्था का नाम भी क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स एनर्जी। सो डियर, कीप मूविंग। तो मानव जीवन दोस्तों हमेशा ही तहस नहस रहा है, इस बात से तो सब एग्री करते हैं। परंतु भारत के प्राचीन ऋषियों ने मन की अशांत तरंगों को चित्त की संज्ञा दी, चित्त की उपमा दी। ऋषि पतंजलि ने भी योग में कहा है, और योग को कहा है चित्तवृत्ति निरोध, है ना। तो ध्यान का अर्थ क्या है? मन की क्षुब्ध तरंगों का पूरी तरह से ठहर जाना, स्थिर हो जाना। और जब हम ध्यान की शुरुआत की जो हमारी सिचुएशन होती है, अवस्था होती है, तो उसमें मन की यह अशांत तरंगे जब थोड़ा बहुत शांत हो जाती है दोस्तों, और जब ईमानदारी के साथ करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं, दृढ़ता पूर्वक बैठ के करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तटस्थ भाव से जब करते हैं, और इस तरह से जब हम ध्यान को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों, तब गहरे आराम की स्थिति में हम चले जाते हैं।
और धीरे धीरे जितनी भी हमारी अशांत तरंगे हैं पूर्ण रूप से शांत होने लगती है। आत्मशक्ति की जागृति ही ध्यान साधना का परम लक्ष्य है दोस्तों। यह तो सब आप अब तक में समझ ही चुके हैं। और जीवन का अमृत क्या है? ध्यान। शाश्वत ध्यान की विधि आन अपान सती ध्यान। ध्यान के अभ्यास से स्वतः ही हमारा जीवन संतुलित, बैलेंस्ड होने लगता है और ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है, व्यवस्थित होने लगता है। इस बात से भी सब मेरे एग्री करते हैं। और अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते भावनाओं में पवित्रता आने लगती है, शुद्धता आने लगती है, मन में स्थिरता आने लगती है, शांति, सुख और आनंद में भी बहुत उन्नति होती है, अभिवृद्धि होती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा हम जो बैठते हैं और उसमें इतने मिरेकल्स होते हैं, और वो भी आज के इस मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फ्री में। तो दोस्तों क्यों ना जुड़े, क्यों ना औरों को भी जोड़े हम। तो ये तो मैंने एक भूमिका के रूप में बात करी ध्यान के बारे में। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला एक्सपीरियंस हमको क्या होता है, अनुभव क्या होता है ध्यान में। सिर का भारीपन, सिर में भारीपन हो, यहाँ माथे पे खुजली, तो कभी वाइब्रेशनल फीलिंग यहाँ पर, या फिर दर्द, या पूरा पूरा सर में एक्यूट हेडेक। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि कोई मेडिसिन नहीं लेना। किसी भी तरह का बॉडी एक हो या किसी भी तरह का सर दर्द हो, कुछ भी दर्द से कनेक्टेड कुछ भी हो, सो नो पेन किलर। वैसे भी पितामह कहते हैं ना, नो डॉक्टर्स, नो मेडिसिन, मोर मेडिटेशन। तो सर में जो दर्द होता है, तो उससे हमें जो सर में भारीपन होता है उसका भी क्या कारण है। और ये जो भी कुछ बातें पितामह ने बताई हैं साइंस बेस्ड है दोस्तों, मनगढ़ंत नहीं है, इसमें कोई लॉजिक माइंड नहीं है। जब हमारा ये जो मध्य भाग है सर का, यहाँ से ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, जब दिव्य शक्ति बहुत तेजी से आती है अंदर, तब सबसे पहले क्या आता है, यही जगह आती है। तो यहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज का रीजन सभी जानते हैं क्यों है, विचारों का घर में पड़े रहना सुस्ती से, आलस्य के साथ, और उसमें भी विचार कौन से, नेगेटिव, सब उल्टे पुल्टे, सीधे कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, सर में भारीपन होता है, तकलीफ होती है, चक्कर भी आते हैं कभी कभी। चक्कर आने का तो और भी कारण है। तो जब ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश करती है दोस्तों, तो भारीपन लगता है। परंतु जब हम बाहर निकलते हैं ध्यान से, तो वो ठीक भी हो जाता है। कभी कभी इमीडिएटली ठीक हो जाता है, तो कभी कभी आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद या जो भी कुछ घंटों के बाद वो ठीक हो जाता है। अगर ऐसा लगे तो पानी की मात्रा बढ़ा दें, पानी ज्यादा पी लें। सेकंड, कि रंग दिखते हैं, प्रकाश दिखते हैं, इंद्रधनुषी रंग, तरह तरह के रंग। कई बार आप लोग नहीं सुनते हैं या स्वयं बोलते हैं कि आज मुझे बहुत पीला प्रकाश दिखा, पीला रंग दिखा, या हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद। तो ये जो रंग का दिखना है, प्रकाश का दिखना है, यह भी पूर्ण रूप से प्राकृतिक है दोस्तों। इसमें अब जैसे सर का भारीपन या सर दर्द हुआ तो हम घबरा गए, पेन किलर ले लिया, तो यहाँ पर भी जैसे रंग दिखा, प्रकाश दिखा,
तो बहुत उछलना नहीं है, समता भाव में रहना है, इक्वानिमिटी में रह के आनंद उठाना है इसका। किसी को नहीं दिखे तो भी परेशान नहीं हो। जब रंग दिखता है तब क्या होता है, रंग भी अलग अलग ऊर्जा है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है, तो उससे क्या होता है, रंग दिखते हैं। और रंग दिखने का अर्थ है हमने ऊर्जा को ग्रहण किया। तो जरूरी नहीं कि आप कहीं स्पेस पे, गैलेक्सी पे ही जाए एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल ट्रैवल करके। पर हाँ, ये भी है कि अगर आपको ये रंग दिखे, प्रकाश दिखे, कलरफुल लाइट्स दिखी, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि आप सही मायने में दिव्य शक्ति, जो कॉस्मिक एनर्जी है, आपके शरीर में प्रवेश हो रही। फिर है कि शरीर में दर्द होना या शरीर का घूमना। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा ऊर्जा लेते हैं और हमारा जो 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, उसमें शुद्धिकरण शुरू हो जाता है हमारे नाड़ी मंडल। और जब नाड़ी मंडल में शुद्धियां शुरू हो जाती हैं तो क्या होता है, कुछ कुछ हिस्सों में शरीर के दर्द हम महसूस करते हैं। ऐसा होने पर भी फिर से इट्स अ हम्बल रिमाइंडर, दवाई का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें भी क्या होता है कि जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तब भौतिक शरीर की बीमारियों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब हमारे शरीर में प्रोसेस के रूप में शुरू हो जाता है कि ऊर्जा शरीर में आ रही है और हमारे भीतर जो ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि शरीर का घूमना, कई बार लगता है कि हम तो सीधे एकदम स्थिर होके, कड़क होके बैठे थे, पर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे हम गोल 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 घूम रहे हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि जब सूक्ष्म शरीर हमारा भौतिक शरीर से बाहर आता है तो हमारे अपने ही भीतर घूमने की अनुभूति होती है, विच इज अ ब्यूटिफुल साइन। और इसी को हम कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। फिर है कि प्रकृति के हम दृश्य देखना शुरू कर देते हैं। जैसे पहाड़ दिखने लगते हैं, नदी, झरने, समुंदर, ये सब हमें दिखने लगते हैं दोस्तों। जंगल, बाग बगीचे भी दिखते हैं, खूबसूरत फूलों की क्यारियां नजर आती हैं, बादल। तो प्रकृति के अनेकों अनेक इस तरह के नजारे जो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। फिफ्थ है कि शरीर में हमें बहुत ही हल्कापन सा महसूस होता है दोस्तों। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है तो जो हमारा फिजिकल बॉडी है उसमें वजन हमें महसूस होता ही नहीं। वी फील सो लाइट। कई बार कहते हैं ना कि अरे मुझे तो इतना हल्का लग रहा है, तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करके आ गए, पर आपको खबर नहीं हुई क्योंकि अभी इतनी और ज्यादा जागरूक अवस्था में नहीं पहुंचे। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम सिक्स्थ एक्सपीरियंस, कि हमें दिव्य चक्षु, मतलब हमारा जो थर्ड आई है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ ध्यानियों को पूर्व जन्म के अपने एक्सपीरियंसेस दिखाई देने लगते हैं, प्रकाश दिखाई देने लगता है, कुछ घटनाएं पिछले जन्मों की आपको दिखने लगती है। सुरंग के भीतर जाते हुए महसूस करते हैं आप कई बार अपने आप को। तो दिव्य चक्षु जो है हमारा जागृत होने लगता है। जैसे जैसे दिव्य चक्षु जागृत होता है, ज्ञान चक्षु भी खुलने लगता है और हमें आत्मज्ञान, विजडम की प्राप्ति होती है। और वो कैसे कि
मास्टर्स आते हैं, आपको मैसेज देते हैं, चैनलिंग होती है, वॉक इन होता है, ऑटो राइटिंग होती है, कई तरह के इस तरह से दिव्य ज्ञान की उपलब्धियां होने लगती हैं दोस्तों। और ये जो है एस्ट्रल ट्रेवल के दौरान ही हमारा सूक्ष्म शरीर मास्टर्स के मैसेजेस लेता है। और जब यह दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो सिर्फ हम ही को लाभ नहीं होता है दोस्तों, हमारे जीवन में ही हमको लाभ नहीं होता है सिर्फ जब हम सज्जन संगति में बैठते हैं, सज्जन संगति में बैठते हैं, तो हम जब ये ज्ञान औरों को भी देते हैं तो उनका भी जो कलेक्शन ऑफ विजडम है उसमें क्या बोलते हैं बढ़ोतरी होती है और ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है दोस्तों। ये बात तो अब तक में आप समझ ही चुके हैं। 7वां अनुभव कहता है कि जैसे कुछ ध्यानियों को क्या होता है कि फूलों की सुगंध सी महसूस होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है आसपास के वातावरण में, जबकि जब बैठे थे तो एक साधारण जगह पे बैठे थे, कोई अगरबत्ती भी नहीं लगाई थी, कुछ नहीं था, परंतु बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी मीठी सी खुशबू की एहसास होने लगती है, मुंह का स्वाद कुछ अलग प्रकार का होने लगता है, जो सलाइवा है उसका टेस्ट फर्क हो जाता है, मानो जैसे अमृत कुछ मिठास लिया हुआ तरल पदार्थ है हमारे के अंदर। और इसके अलावा कईयों को आजकल बहुत ज्यादा लोगों को मैं सुन पा रही हूँ इस बारे में बार बार कहते हैं कि हमारे कान बज रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कान में कुछ आवाजें आ रही है या जैसे कोई कुछ कह रहा है पर मेरे को क्लैरिटी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान अगर और बढ़ा देंगे तो जो आवाजें हैं वो क्लियरली सुनाई देने लगेंगी। हो सकता है कोई मैसेज हो, कोई मास्टर, कोई गाइडेड, हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं या एंजल्स होते हैं, दे वांट टू स्पीक समथिंग, पर हमारे अपने ही दिमाग का इतना शोर शराबा है विचारों के कारण कि हम लोग उसको सुन नहीं पाते। अभी भी अगर यहाँ 8-10 लोग शोर मचाने लगे तो मेरी बात कोई सुन पाएगा? कोई नहीं। तो दिस इज द 7th एक्सपीरियंस एंड दीज आर द 7 एक्सपीरियंसेस दोस्तों। परंतु इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हमें गलत फहमियां होती है, कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ अलग तरह के मतलब हर्डल्स होते जिसे कहेंगे, और समझ नहीं आता है कि ये क्या है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अवश्य कहना चाहूंगी कि वो क्या होते हैं। अब जैसे हम कहेंगे भ्रांतियों के रूप में ही मैं अगर सबसे पहले लूं तो वो है कि क्या ध्यान करना इतना कठिन है? तो दोस्तों आप तो सब अब मास्टर्स बन चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि ध्यान करना इतना कठिन नहीं है। और जो हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थियों के लिए नहीं और साधु सन्यासियों के लिए नहीं, मतलब ये साधु सन्यासियों के लिए ही है, हम गृहस्थियों के लिए नहीं है ध्यान करना। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी। श्वास से तो स्वाभाविक है, गृहस्थी भी लेते हैं, साधु सन्यासी भी लेते हैं दोस्तों। तो यह तो हम अपने आत्मज्ञान के लिए, अपने आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं, और किस तरह से हमें अपने गृहस्थ जीवन में जीना है, कैसे मुसीबतों का सामना करना है। तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कईयों ने महसूस किया होगा कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती ही है, परंतु अब हमको कोई सी भी सिचुएशन को हैंडल करना आ गया है, बड़े आराम से हम उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि बहुत ही सरल तरीका है, आनापान सती ध्यान की विधि का शाश्वत तरीका है, तो कोई कठिन नहीं है ये। और
ध्यान करने के लिए ना तो हमें कोई ड्रेस कोड है और ना ही कोई खास जगह पे जाके बैठना है कि भाई नहीं उसी जगह पे बैठना है, उसी समय पे करना है। पितामह ने तो हमारे लिए इतना आसान कर दिया है। ATM, एनी टाइम मेडिटेशन, एनीवन कैन डू, एनी टाइम, एनीवेयर। तो उन्होंने तो हमारे लिए इतना इतना आसान कर दिया है ये सब कुछ कि किसी भी परिस्थिति में हम बैठ के ध्यान कर सकते हैं। बस लगन होनी चाहिए। और बल्कि जो हमारे मंथली साइकिल है लेडीज की, उस समय तो ध्यान अति आवश्यक है करना, जिससे कि जो भी हमारे अंदर विकार हैं, प्रॉब्लम्स हैं, we can get rid of those problems without taking any medicines. फिर ध्यान करने के लिए एक और भ्रांति कि ध्यान करने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। नहीं दोस्तों, हकीकत तो ये है कि ध्यान करने से ही मन शांत होता है। इसके पहले तो भाग रहा होता है ना, मालूम है ये बात तो सबको। तो मन को शांत करना है तो इसीलिए हमें ध्यान करना है। और इसी तरह से जब बहुत ज्यादा निरंतर हम ध्यान करते रहेंगे तो उससे क्या लाभ? प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। ये बात तो सभी जानते हैं इस कहावत को। अब हमको जब पैदा हुए थे और जब चलना सीखा था 8-10 महीने के बाद, तो दोस्तों कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे और फिर चले। कभी सहारा लिया उंगली का, कभी दरवाजे का, कभी कुर्सी का, राइट। तो धीरे धीरे आज हम इतने स्मार्ट हो गए चलने में कि हमारे को न किसी के सहारे की जरूरत है। और कीचड़ भी दिखा तो साइड से निकल जाएंगे, बड़ा सा कोई पत्थर दिखा तो साइड से निकल जाएंगे, छोटा सा पत्थर भी दिखा तो उसके ऊपर स्टेप और नहीं करते हैं। वी हैव बिकम सो स्मार्ट। तो उसी तरह जब हम ध्यान में भी आ जाते हैं दोस्तों, तो हमारे जीवन के हर्डल्स खत्म होने लगते हैं, बिकॉज वी रियली रियली बिकम वेरी स्मार्ट एंड वी नो हाउ टू फेस देम। तो ये हमारे ध्यान से होने वाले शीघ्र शीघ्र लाभ है। तो जो कई कई गलत फहमियां हैं, परंतु इससे पहले मैं चाहूंगी कि जो हर्डल्स के रूप में आते हैं हमारे ध्यान में, ध्यान करने के दौरान जो बाधाएं आती, मैं उन पे भी लाइट देना चाहूंगी। जैसे कि बाहरी बाधाएं, व्हाट इज दैट? शुरू में बाहर से आने वाली बाधाएं, शोर जैसे, आवाजें जैसे। तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार मेरे को कहते हुए कि जिस भी वातावरण में हम बैठे, एक्सेप्टेंस में बैठे, कि दरवाजे की आवाज आई बंद होने की, खुलने की, या ट्रैफिक की बाहर की आवाज आ रही है, या कोई शोर भी कर रहा है, घर में बातचीत भी कर रहा है, कमरे में कोई आया तो चहलकदमी की, फुटस्टेप्स की आवाज आई। वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दैट, क्योंकि हम कुछ बदल नहीं सकते। और अगर कुछ बदल सकते हैं तो स्वयं को बदल सकते हैं दोस्त। एंड दैट्स ऑल। यहीं पर ही बात आके खत्म होती है। सो वी हैव टू बी ऑलवेज इन एक्सेप्टेंस मोड, सरेंडर मोड। उससे क्या होता है, शुरू शुरू में जब हम ध्यान करने बैठते हैं, एक तो सबसे पहले ना एक छोटी सी सुई की नोक बराबर स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। हाँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, क्यों शोर मचा रहे हो आप लोग? क्या हो रहा है ये यहाँ पे? देख नहीं रहे हो? दिखता नहीं है कि इस समय मैं रोजाना ध्यान में बैठती हूँ? ये इस तरह के हम लोग कुछ तो मुंह से बोल जाते हैं, कुछ मन ही मन बोलते हैं, पर बोलते सभी है। तो दोस्तों, एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे, एक्सेप्ट भाव में रहेंगे, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये सुई की चुभन जितनी ईगो भी नहीं आएगी, विच इज अ वेरी कॉमन स्पिरिचुअल ईगो में। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब देखो, कितना ही हम मतलब शोर घर में मच रहा है, लोग आए हुए हैं, बातचीतें हो रही हैं, हम भी उस बातचीत में शामिल हैं, परंतु जब छौंका लगा रहे हैं तो मालूम है कद्दू की सब्जी में मेथी दाना जीरे के साथ और सौंफ अवश्य डलेगी, मीठा भी डलेगा, खट्टा भी डलेगा, है ना।
भले ही बातचीत सुन भी रहे हैं, हम बात कर भी रहे हैं, परंतु फोकस कहाँ है सारा, कि कद्दू की सब्जी में क्या क्या डलना है, कितना डलना है, राइट। तो दोस्तों, नो एक्सक्यूज, बी फोकस्ड। जब ध्यान में बैठे, जो कुछ हो रहा है उसको होने दे। दूध भी उफन के गिर रहा है तो गिरने दे, शोर मच रहा है मचने दे। हाँ, ये कर सकते हैं कि ध्यान में बैठने से पहले पूरे घर को चेक करके, कि अगर मेड भी आने वाली है तो उसको इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई हाँ, मैं इतने बजे ध्यान में बैठती हूँ, तू इतने बजे आती है। मैंने हल्का सा दरवाजा खोल के रखा हुआ है, लॉक नहीं है, तो अपने आप खोल के अंदर आ जाना और शोर मत मचाना। वी हैव टू ऑर्गेनाइज अवर सेल्व्स एक्चुअली। ये तो हुई आउटर, उसमें जो हर्डल्स के रूप में आते हैं। फिर है शारीरिक बाधाएं, कि शरीर में दर्द होना, खुजली होना, बेचैनी होना। बेचैनी तो सबसे पहला हर्डल है, कि आंख बंद करके बैठ नहीं पा रहे, तो मन चंचल है, तो कभी इधर हिल रहे, कभी इधर हिल रहे, नहीं भी खुजली हो रही है तो भी कुछ 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 कुछ, कहीं 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 कहीं, मतलब बेचैनी इतनी होती है, मन ऐसा भागता है जिसका हिसाब नहीं। तो कभी गर्म लगता है, कभी ठंडा महसूस करते हैं, तो कभी पांव हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, कभी लगता है शरीर ही नहीं है। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं। आप जब बैठे थे ध्यान में, तो जागरूक अवस्था में बैठे थे, तो आपको मालूम है कि आप वही हैं, उसी कमरे में, उसी सीट पर। तो ना कोई डरने की बात है, ना घबराने की बात है। तो जो कुछ हो रहा है होने दें, मस्ती में रहें। वैसे भी मैंने इस जगह को नाम दिया है मस्ती की पाठशाला, है ना। तो दोस्तों, हम जो ध्यान करते हो, हम एज ए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मस्ती की पाठशाला में मस्ती करने आए, राइट। फिर क्या होता है, मेंटल लेवल पे मानसिक बाधाएं आती है। उसका क्या, जैसे बहुत ज्यादा विचार, सबसे पहले तो वही है। तो बार बार विचार तो आएंगे, हम अगर बुद्धिजीवी हैं, वी आर नॉट इडियट्स, वी आर इंटेलिजेंट पीपल। तो विचार तो आएगा ही आएगा, नेचुरल है। परंतु उसके पीछे नहीं भागना है, उसके पीछे भागे नहीं कि इडियट कहलाए। So, दोस्तों, अपने को विचारों में नहीं उलझना है, क्योंकि विचार जो भी है, या तो पास्ट के हैं या फ्यूचर के। प्रेजेंट के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मालूम है, इस वक्त मेरे को कुछ भी किचन से कनेक्टेड है या किसी के आने जाने से कनेक्टेड है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ध्यान करना है। तो प्रेजेंट का तो कोई विचार है ही नहीं। जो भी कुछ है वो पास्ट का है या फ्यूचर का है, और दोनों में ही बर्बादी है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी ड्रेनर। तो इसमें अपने को बिल्कुल नहीं उलझना है। तो विचारों पे जैसे ही जाते हैं और रियलाइज हुआ, इमीडिएटली कम बैक टू द नॉस्ट्रल्स। अपनी श्वासों पे वापस आ जाए, नासिका के द्वार पर। घबराहट होती है, ये क्या करूं, मैं बैठूं ना बैठूं। तो दोस्तों, इस बेचैनी को, इस घबराहट को भी परे रख के, आज कुछ संकल्प के संग बैठूंगी मैं। और जो भी कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अपने आप को पॉजिटिव थॉट के संग बैठे, कुछ एफर्मेशंस के संग बैठे, पानी अच्छे से पी के बैठे। नींद में चले जाते हैं, अधिकतर लोग नींद में चले जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। जागृत अवस्था में बैठेंगे तो विचारों में उलझ के भी बार बार हम नासिका के दो द्वार पर आ सकते हैं, परंतु नींद में चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और जितनी भी ऊर्जा आ रही है इस वक्त, मिलेगी तो अवश्य, परंतु उतने लेवल पर नहीं। सपने में एक मिठाई का खाना और एक हकीकत में मिठाई का खाना, कितना फर्क है। स्वाद वहां पर भी था, एंजॉय किया, स्वाद यहाँ भी है, एंजॉय कर रहे हैं, परंतु हकीकत में जो खाया हुआ मिठाई का टुकड़ा है, उसका अपना ही एक अलग ही मजा है, जो हम फिजिकल लेवल पे महसूस कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। तो उसी तरह इसमें भी है कि सोना नहीं है दोस्तों, सोएंगे तो खोएंगे। कितनी अच्छी कहावत भी बनी है ना, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो जागे रहो। खर्राटे की आवाज, उफ, जब हम लाइव उसमें बैठते हैं, लोग सोते तो हैं ही, पर साथ में खर्राटे की भी इतनी आवाजें आती हैं।
इट्स सो नर्व रेकिंग समटाइम्स। और शुरू में तो बहुत होता था, अब तो हम मुस्कुराने लग गए, ब्लेसिंग्स ही देते कि कोई बात नहीं, यू आर इनटू डीप मेडिटेशन। बहुत अच्छे से रिलैक्स्ड हो रहे हो। इट इज अ फैक्ट। नींद में जाना या ध्यान में जाना, बॉडी तो रिलैक्स होती है, विचार भी कम होते हैं, खत्म भी हो जाते हैं, हमको ऊर्जा भी बहुत मिलती है, फ्रेश भी हो जाते हैं, है ना। तो उबासी का आना, ऑक्सीजन की शरीर में इतनी कमी, क्योंकि हम बंद कमरों में रहते हैं, तो जब ब्रह्मरंध्र से एनर्जी अंदर जाती है तो अंदर की जो निगेटिविटीज है वो बाहर आने लगती है दोस्तों। तो कईयों को गुस्सा आता है, वो एक्चुअली डर लगता है, गुस्सा आता है। ये क्या है? ये जो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं। तो इससे भी हमें घबराना नहीं। और अगर कोई कहे भी कि तुम तो ध्यान करते हो, फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तो बड़े प्यार से मुस्कुरा के बिना कोई जवाब दिए वहां से खिसक लो, या कह दो। फिर कहना भी है तो अगर लगता है कि बहुत हो गया, आज तक मैं सुनती रही, मैं ये, तो वो बड़े प्यार से कह दो। और वैसे भी अंग्रेजी में तो बड़ी एक रूड श्रूड कहावत है, माइंड योर ओन बिजनेस, बट वी आर नॉट सपोज टू स्पीक दैट। तो दोस्तों, ये आंखों में से पानी आता है, कभी कभी ये भी होता है। तो लगता है कि बड़ा एम्बेरसिंग है, कोई देख लेगा कि मैं रो रही हूँ। नहीं दोस्तों, अंदर के जो इमोशंस है उनकी क्लिनजिंग हो रही। बी हैप्पी। कैसा भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, बस सोने के अलावा, हाँ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी हैप्पी। किसी भी प्रकार की बाधा हो, आपको बार बार ध्यान क्या करना है, श्वासों पे लेकर जाना है। अपने भीतर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें उलझना नहीं है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा आज का भ्रांतियों के बारे में, गलत फहमियों के बारे में बातचीत, जो बाधाएं, हर्डल्स हैं उनके बारे में बातचीत, और जो अनुभव होते हैं उनके बारे में बातचीत। अब कितना डिटेल में देखो, हमारे पितामह ने बात की है, नोट डाउन किया होगा, बार बार उनके संग ऐसा महसूस हुआ होगा उनको, तभी तो वो इतना सब कुछ लिख पाए और हमको ये ज्ञान दे पाए। हाउ वंडरफुल इट इज, हाउ वंडरफुल। तो हमको खुद को भी एनलाइटन होना है दोस्तों, औरों को भी एनलाइटन करना है। थैंक यू। Thank you. Thank you, Nalini ji. I So hope everybody wonderful. could able to understand. Yes, so wonderful. Wonderfully explained everything. Very nice. Very nice. और जब बहुत तक इन सारी चीजों की गलत फहमियां और ये जो है सब दूर ना हो, हम लोग कई बार होता है अटक जाते हैं, yes, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते बाबा। तो बहुत जरूरी है कि पितामह के जो भी कहे गई बातें हैं, वी मस्ट नो अबाउट देम। simplified. यस, वी Very मस्ट सिंपली। simplified. Yes. बहुत लोग को ये मालूम नहीं होगा कि what is astral traveling, walking, some of the things in the astral travel happens. वो थोड़ा उस पे थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा if you can explain a little bit about it. आई एम सॉरी। That's okay. एक बिटिया ने आके कहा मुझे आपका फोन चाहिए, क्योंकि कुछ बनाना है उसमें से, मोबाइल में से। तो मॉम्स के ग्रुप्स होते हैं ना, तो उन्होंने मुझे अपने मॉम्स के ग्रुप में भी डाला हुआ है। तो आई एम सॉरी। That's एस्ट्रल okay. ट्रेवल की बात। यस। Astral traveling में जो मास्टर्स के साथ कनेक्शन होते हैं और थोड़ा दोस्तों, वॉक इन होता है और ये सब
जो चीजें होती है उनसे घबराना तो नहीं है, लेकिन what does happened in that, maybe a simple language में if you can explain a little bit about it. आई विल ट्राई। हम्म, सबसे पहले तो एस्ट्रल ट्रेवल क्या है? आप जब सपने देखते हो दोस्तों, तो उसमें क्या होता है बताइए? कभी कभी आप झरनों तक पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं कि नहीं? कि अरे आज पता है मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया, तो आज तो मैं लंदन चला गया, आज तो मैं गोवा चला गया या चली गई। ये सब क्या है? सपने में जो आप देखते हो, महसूस करते हो, या अपने पेरेंट्स से मिलने चले जाते हो, या किसी भाई बहन फ्रेंड से मिलते हो, ये सब क्या है दोस्तों? ये भी एक तरह का एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही है, परंतु ये सपने में है। अब जब हम ध्यान में बैठते हैं, तब भी ऐसा बहुत कुछ होता है। मैं अपना एक पर्सनल अनुभव बताती हूँ कि जब जम्मू जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जब मैं गई थी, ध्यान की यात्रा में, तो वहां पर मैंने सीआरपीएफ के जवानों को करवाया, कमांडोज को करवाया, ऑफिसर्स को करवाया। तो इतना गहरे ध्यान में चले गए। अधिकतर लोगों का अनुभव ये रहा, उन लोगों में एक सबसे ज्यादा कशिश, बेचैनी किस बात की होती है? घर परिवार से दूर बैठे हैं, जान माल का खतरा लेके बैठे, है ना? तो एक वो जो कशिश है परिवार से दूर होने की, और जो इच्छा रहती है, कितनों ने ही देखा कि, और जब वो बाहर निकले तो इतनी एक्साइटमेंट थी उनमें, मैं बयान नहीं कर सकती। उनके चेहरे को देख के, उनकी आवाज को सुन के मुझे कितनी संतुष्टि मिली कि ये लोग सही मायने में विचारों से परे गहराई में जाके ध्यान करके एस्ट्रल ट्रेवल किए, अपने गांव गए। उन्हीं की शब्द मैं बताती हूँ दोस्तों, और वो ये कि मैडम पता है हम अपने गांव चले गए थे, और मैं अपने ना पिताजी के संग बैठा हुआ था, मुझे इतना अच्छा लगा। उसके चेहरे की खुशी मैं सचमुच बयान नहीं कर सकती। कितने ही शब्दों का मैं इकट्ठा कर लूं, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यूज कर लूं, पर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी दोस्तों। इतने लोगों को इतनी खुशी हुई। कोई अपने बच्चों को मिलकर आया, कोई अपनी पत्नी से मिला नई नई शादी के बाद, तो माँ बाप को मिले, और कईयों ने तो ये कहा मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली है कि मैं जब भी गांव जाऊंगा ना मैडम, अपने माँ बाप को जरूर सिखाऊंगा, अपने परिवार वालों को ये ध्यान जरूर सिखाऊंगा। तो ये सब क्या था? माता पिता के पास जाना, बच्चों से जाके मिलना, ये हमारे अंदर का जो सूक्ष्म शरीर होता है, हम उसके द्वारा, ये कैसे होता है? नाभि जो हमारा नेवल पॉइंट है, तो नेवल पॉइंट आपको मालूम होगा कि मदर से भी जुड़ा हुआ होता है ना? तो यहाँ पर हमारे एक सिल्वर कॉर्ड होती है दोस्तों। एरोप्लेन से आप एक लिमिटेड एरिया तक जा सकते हो, जहां तक उसकी अप्रोच है जाने की, परंतु ये जो सिल्वर कॉर्ड है हमारे नाभि से जुड़ी हुई, इसको आप लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकते हो दोस्तों, और दूसरी गैलेक्सीज में, दूसरी स्पेस में भी जाके आ सकते हो। अब आपको तिहाड़ जेल का मैं मुस्लिम बच्चे का अनुभव बताती हूँ कि मुस्लिम होके उसका कहना है कि वो कैलाश पर्वत ट्रैवल करके आया, शिव जी को वहां ध्यान में समाधि में बैठ के देख कर आया। तो जब उसने ये एक्सपीरियंस सुनाया, तो जो कट्टर मुसलमान दूसरे बच्चे थे, तो वो एकदम से बिगड़ गए थे मेरे पे, और उठ के चले गए थे मुझे कोसते हुए कि आप हमारा यहाँ ध्यान करवाने नहीं, हमारा जो है धर्म परिवर्तन करवाने आए। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है। अगर धर्म परिवर्तन होता है तो हैवानियत से इंसानियत
और देवीय शक्तियों आप में आने लगती हैं। ये धर्म परिवर्तन मैं कह सकती हूँ कि यही होता है, और सिर्फ यही होता है कि आप में इंसान जाग जाता है। आप ध्यानी बनो ना बनो, पर एक बहुत अच्छे इंसान अवश्य बन जाते हो। और यही आज 15 अगस्त का दिन है, तो मैं यही कहूंगी कि देशभक्त बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान अवश्य बन जाना दोस्तों। अपने भीतर प्रेम, करुणा, अहिंसा ये सब जगह के, बल्कि इट रिमाइंड्स मी, अच्छा मैं मोबाइल में देख के पितामह का एक संदेश है, वो जरूर दूंगी। बस मुझे एक छोटा सा रिमाइंडर दे दीजिएगा, मे बी आफ्टर मेडिटेशन। सो क्या हम अब ध्यान करें? ओह सॉरी, वॉक इन। वॉक इन का क्या है कि अ, आप लोगों ने शब्द तो सुना होगा कि हाँ, उसमें भैरव बाबा आ गए, उसमें देवता आ गए। व्हाट इज ऑल दैट? या उसमें देवी की शक्तियां आ जाती हैं। व्हाट इज ऑल दैट? वो अपने आपे में नहीं रहते हैं उस वक्त, और जो भी कुछ बोलते हैं तो वो बहुत ही बहुमूल्य शब्द होते हैं, और कई बार तो लोगों को इतनी मदद करते हैं कि उनके कष्टों का निवारण करते हैं। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने सभी ने, है ना? ये बहुत सी मान्यताएं इस तरह की रही भी हैं और हकीकत भी है। गांव में तो आज भी इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो कुछ नेगेटिव रूप में भी है, तो कुछ पॉजिटिव रूप में भी है दोस्तों। परंतु जब यहाँ पर आपके भीतर कोई वॉक इन करता है, तो वो कोई ग्रेट मास्टर होता है जो आप में एंटर करते हैं, और फिर उनकी जो विचारधारा है, क्योंकि दे आर स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी जो विचारधारा है आपके मुंह से उनके शब्द निकलने लगते हैं, और वो फिर आप सबको संदेश के रूप में देते हो। सिल्विया ब्राउन करके एक मास्टर है, स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे तेलुगु साउथ इंडियन मास्टर, उनमें वॉक इन हो गई। तब फिर मैंने उनकी वाइफ से पूछा, मैंने कहा अब इडली सांभर जो खाते हैं वो तो कांटे छुरी से खाते होंगे राजन सर, और क्या बहुत ज्यादा ब्रेड टोस्ट और फ्रूट्स घर में आ गए, वाइन की बोतल भी घर में आ गई होगी? बोले ऐसा फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं हुआ है, आज भी वो इडली डोसा खा रहे शौक से। हाँ, विचारधारा थी उनकी, वो बदल गई। अब एक बार जिनसे मैंने ये मजाक किया था, उन्हीं में कस्तूरबा आ गई थी 21 दिन के लिए। तो इस तरह से आत्मा प्रवेश करती है और कुछ संदेश देके फिर वो निकल जाते हैं, वॉकआउट हो जाते हैं। तो इसके अलावा ऑटो राइटिंग, ऑटो राइटिंग में क्या होता है कि मास्टर आपको मैसेज देते हैं। अब वृंदा मैडम का नाम सभी जान आज की तारीख में, तो जब इनका शुरू भी हुआ था तो हाथ कांपते थे इनके, मतलब कुछ बेचैनी सी रहती थी इनकी उंगलियों में, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो पता नहीं कुछ इनको ऐसा लगा जैसे, मतलब रियलाइजेशन नहीं था ना, अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में कुछ भी, तो इनको लगा जैसे कि मैं कुछ लिखती हूँ। और जब लिखने गई तो वो नॉन स्टॉप लिखती चली गई, और धीरे धीरे उनके जो हाथ के वाइब्रेशनल एक वो जो आ गई थी प्रॉब्लम, वो खत्म होने लगी। फिर उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, देखा, जाना, समझा। देन शी रियलाइज्ड कि मैं तो ऑटो राइटर बन गई हूँ। और फिर धीरे धीरे ध्यान में बैठ के इन्होंने और ज्यादा क्लैरिटी लाई, तो पता चला कि कौन संदेश दे रहा है। जैसे कल रात को शी वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, और कल दोपहर की बात है, उनके साथ क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस आए और उन्होंने मैसेज दिया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस, या वो तभी कमिंग थर्सडे यानी कि कल आपके लिए परसों
मैसेज पूरा पढ़ेंगी, पर उन्होंने थोड़ा सा जो भी कुछ थोड़ा सा मैसेज दिया था 3-4 लाइन का सुभाष चंद्र जी बोस का, तो ये उन्हीं की लाइन है कि देशभक्त बनो ना बनो, इंसान बन जाओ, इंसानियत ले आओ अपने अंदर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बोस सर की ही लाइन है जो वृंदा मैडम ने कल दी थी, जो मैंने आप लोगों को कन्वे की है। अब यही है ना, सज्जन सांगत्य हुआ कल वहां तो मुझे पता चला, सज्जन सांगत्य होता है यहाँ तो मैं आप लोगों को बता सकी। इसीलिए पितामह ने कहा है सज्जन सांगत्य बहुत बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को अहम ब्रह्मास्मि में जाइएगा, तो आप लोगों को बोस सर का मैसेज मिल जाएगा। नहीं तो अनगिनत मैसेजेस उनको आज तक में आ चुके हैं। महाअवतार बाबा जी के, पितामह के 2 बार मैसेज उनको आए हैं, और ये सबसे लंबे मैसेज उन्हीं के थे आज तक में मेरे को, वरना तो हाफ एन आवर से ज्यादा कोई मैसेज नहीं होता है। और भी कुछ था इसके अलावा? बस इतना ही। चैनलिंग, यही सब कुछ है। तो आइए दोस्तों, फटाफट हम ध्यान में बैठे। म्यूजिक, यस सचिन, म्यूजिक लगाना। तो आइए दोस्तों, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लेंगे, और जैसे कि लीना जी कर रही है सब उनकी नकल कर सकते हैं। चश्मे उतार लीजिए और ध्यानस्थ हो जाइए। म्यूजिक आता रहेगा, आंखें बंद कर दीजिए। यस, shall we do it for half an hour? Sure, please. पानी अवश्य पी ले दोस्तों। या किसको भी पानी पीना हो प्लीज। हाँ, जिसको भी पानी पीना है, पानी जरूर से पी के बैठे। इतनी ढेर सारी बातचीत के बाद बुद्धिजीवी होने के नाते मुमकिन है, पॉसिबल है कि वो सारी बातें आप अपने दिमाग में दोहराएंगे, परंतु ना ना ना, ये समय तो सिर्फ मेरा अपना है, विचारों का नहीं। सारे दिन विचारों के संग रहता हूँ। अब तो सिर्फ मैं स्वयं के संग जोड़ूंगी या जोड़ूंगा, और उसके लिए विचारों से परे श्वासों पर ध्यान देंगे। श्वास ही गुरु है, श्वास ही मेरा अभिन्न मित्र है, जिसने मेरी पहचान बताई, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना सिखाया। धीमी गति से आती जाती श्वास, बाजी। कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई सोच विचार नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने पे गहन गहराई में जाके गहन शांति का अनुभव करना है दोस्तों।
कोई जिज्ञासा नहीं। जब एक बार आंखें बंद हो गई तो विचारों के बीच में जो गैप है, वो जो खालीपन है, वहीं से शून्यता का साम्राज्य शुरू होता है। आओ हम दो विचारों के बीच के उस दरवाजे में से घुस के निर्विचार होके इस शून्यता के साम्राज्य में प्रवेश करें, जहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ दिव्य प्रकाश, इंद्रधनुष के रंग, गहन शांति की अनुभूति। अगर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर आ जाए तो माथे के सर भी हट जाएंगे। झूमने का मन करे तो खूब झूमो। यही तो समय है स्वयं के संग बैठने का। इतनी गहराई में जाओगे
अपनी चेहरे पे मुस्कान बढ़ती चली जाए, गर्दन सीधी, जिस तरह बारिश को देख के मयूर के चेहरे पे प्रसन्नता आती है, कोयल कूकना शुरू करती है, हमारा मन भी इस बांसुरी की धुन पर नाच रहा है जैसे। समय है, जो कुछ भी हो रहा है बस होने दें। कुछ नहीं करना ही तो ध्यान है दोस्तों। क्यों ना हम पितामह की कॉन्शियसनेस से भी जुड़ जाए।
गहन गहरी शांति की अनुभूति।
तन स्थिर, मन शांत। अद्भुत, सब कुछ अद्भुत। जितनी चेहरे की मुस्कान गहरी, उतना ही शरीर शिथिल। धीरे धीरे जो बहुत दूर निकल गए थे, समय को ध्यान में रखते हुए बाहर वापस आने की कोशिश करेंगे। जो भी ध्यान में बैठना चाहे अवश्य बैठें। धीरे धीरे बाहर आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। लास्ट 30 सेकेंड्स। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला लेंगे और अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें, जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे
पैरों की उंगलियों को हिला के, हाथों की फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा और ढीला कर लेंगे। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो बैठना चाहे अवश्य बैठे रहेंगे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी हथेलियां खोल के चेहरे पे रख लेंगे और 5 की गिनती में बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पलकों को झपकाते हो इस नए संसार में नए विचारों के साथ एक प्यारी सी नई मुस्कान को लिए हुए वापस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नलिनी जी। इतना सुंदर मेडिटेशन था, ध्यान था, बहुत ही गहरा था। आज की ऊर्जा अलग ही थी। was total एकदम प्रकाश ही था। इतना प्रकाश था, दूर दूर तक ले गया था हमको। बहुत ही मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू यू माँ। आपके इस प्लेटफॉर्म पर इतनी ऊर्जा है, हमेशा ही मैंने देखा है, महसूस किया है। सारे मास्टर्स यहाँ पर ग्रेट मास्टर्स हैं। यस, अभी इतनी जागरूक अवस्था में नहीं आए हैं कि दे कैन रियली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बट इन दिस प्लेटफॉर्म रियली ग्रेट मास्टर्स आर देयर। ये आपने बहुत सारे सब मास्टर्स आके वही बात करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे इतनी ऊर्जा होती है। इवन धीरेन सरिन भी आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने भी वही किया था बात। वो 15-20 मिनट्स के लिए कराने वाले थे। It took the dhyan to 40 minutes. He couldn't come up. He didn't want to stop it. मैं बीच में मौन हो गई थी। Yes. जैसे पितामह की कॉन्शियसनेस से जुड़े हम लोग, मैं मौन हो गई थी। मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बात करना। True. That's true. It's people don't realize it, but how divine souls each one of you are. That's what everybody says. प्रेमनाथ सर भी वही बात करते थे। प्रेमनाथ सर पहली बार ही आए थे और अभी वादा किया है कि वापिस आएंगे करके। How nice. So it was very nice, and thank you Ma. You are the greatest. You are the greatest. सब लोग पानी अवश्य पी ले दोस्तों। Yes, please make और sure. Yeah. अपने स्वयं के स्वागत में ताली बजाएं कि हम बहुत नए विचारों के संग, नई ऊर्जा के संग वापस से इस भौतिक शरीर में नए स्वास्थ्य को लेके शाबाशी भी दे ही ले। यस, वेरी गुड। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई अनुभव है, yes, you can unmute yourself. जन सांगत्य में Every one of you can unmute yourself and you can. हमारे साथ ज्योति भी है, ज्योति छेड़ा, वो भी she is recovering very well. She's How nice. great. She's doing great. I think she was hospitalized. She's the same Yes, जो पिछली बारी yes, बात करी yes. थी। नहीं, वो मेरी बुआ थी, वो आज ज्वाइन नहीं हो सकी है। Well, she is recovering too. Okay. And this Jyoti is Okay. also. और ज्योति जी को क्या हुआ था? This Jyoti, she fell down, she broke her hip, का lower bone, वो जो अपना थाई का बोन होता है ना, nearby समझ the, गई। it was broken, and we were on vacation at that time, and Okay. over there she had the surgery done, and she's recovering very well. She's She's from New Jersey.
Yes, she's from New Jersey and she's walking and everything. Yeah, Very nice. yeah. So she's recovering very well. So, but we are doing good. Everyone is doing good with the meditation and amazing, amazing. Yes. Go ahead, Lina Ben. I know. See. I see white things most of You the have time. to first Huh? raise your hand, ma, so we can bring you Yeah. Yeah. on the spotlight now. Yes. Lina Shah. Anji. Anji. Yeah. Okay. So basically, Body I say oh God, when I do the meditation, I see most of the time white clouds, and I'm satisfied. I don't know, because what I heard from you, it could be any color or anything, but most of the time I see white and I'm deep looking at it. That's it. Very nice. Good. And it makes me very positive, very positive. Yes. भाई खुला आसमान क्या बोलता है? खुला आसमान कहता है कि सूर्य का प्रकाश भरपूर आ रहा है. You can see everything. Everything is so crystal clear in your mind also. You know exactly what you want to do and what is right for you. So Yes. everything is totally crystal clear, like बहता पानी. You can see everything inside. नीचे सब दिखता है. Transparency है. Yeah. Yeah. आप लाइफ में, आपके थॉट्स में, सब में ट्रांसपेरेंसी है. ये नहीं कि मन में कुछ है और बोल कुछ रहे. Am I right? Agree with you. I agree with you. So that is why you keep seeing white clouds. Okay. So Okay. much transparency, so much clarity, so much light is there in your life. Thank you so much. Gray cloud, black cloud, तो नेगेटिविटी की निशानी है. और आपने अपने आप ही कहा कि whenever I see white clouds and I keep seeing them, तो उसका क्या मतलब है? कि you yourself said कि मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ. Yeah, Right? definitely. So The negative thought doesn't come there at all. And that's all thanks to all of you, Damayanti ji. And I learned so much from all of the masters. And when I have any confusion, I talk to Damayanti Ben, and it makes me satisfied and makes me strong. देखिए, मैंने और दमयंती जी ने तो कुछ भी नहीं किया. आप खुद नहीं किया. जब तक आप ओपन माइंडेड नहीं रहे, एक्सेप्टेंस में नहीं रहे, सरेंडर मोड में नहीं रहे, आज आप जो बन चुके हो नहीं बन पाते. अरे ठीक है, घर में बैठे बोर होते हैं, चलो 1 घंटा बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं उनको, क्या है. तो अगर ये एटीट्यूड होता तो आज जहां आप पहुंचे हो नहीं पहुंच पाते. सो यू वर द राइटर, you are the producer, you are the director, you are your own creator. Thank you. आई बात समझ. Yeah. Thank you so much. Thank you. रमेश पैल. पाल. हाँ, रमेश पाल. यस. उनका हैंड रेस है. जी जी जी. आप अनम्यूट कर लीजिए मैडम. हाँ, अनम्यूट कर लीजिए. नहीं, हाँ जी. मैं तो अटेंड करने वाली थी. आप तो खत्म भी कर लिया. कितने बजे शुरू हुआ था? 6 o'clock. ओ, आप टाइम तो 7:30 लिखा हुआ है. अरे no way, 6 a.m. to 7:30. Hold. नो, एक मेरा फ्लायर आया उसमें 7:30 लिखा हुआ है. अरे वो 6 o'clock रात को 11 बजे या तो लिखना भूल गई या लिखा देख.
इसीलिए मैं 10 बजे, मेरा 10 बजे थे, मैं 10 बजे की वेट कर रही थी। आपने देखा उसमें 2 लिखा हुआ है, 2 7:30 at 7:30 नहीं है, मतलब वो 6 AM to 7:30, 6 AM कहाँ चला गया? बहुत नींद आ रही थी और डर था कि सुबह उठूंगी कि नहीं। आई Now एम रियली you, सॉरी, आई now एम you रियली owe me सॉरी। a session. Yes, I yes. will give you. Come at 11 o'clock. Very special session. 11 what time? AM. It'll be my 1:30 in the morning. I know that. I know. That's why you join 8 o'clock in the night. I know that also. Yeah. But thank you anyway. So I got a Oh, little it's bit. a very big blunder I have done. My God, I'm so sorry. न जाने कितने लोग अब 7:30 जुड़ेंगे. Oh, हाँ, मैं तो वेट कर रही थी, नहीं तो सो जाती। 2 7:30 AM. My God, 6 AM खा गई मैं, भूख लग रही होगी शायद. चलो कोई बात नहीं। It's a My good mistake. apologies, ma. I'm really It's sorry. okay. It's okay. Thank you. Thank you. At least we got to see your positivity face, all the good vibration. yes, yes, yes. दमयंती जी आपको भी हाँ, आया है, आपने भी नहीं देखा शायद ना? नहीं मैंने भी नहीं देखा, मैंने तो हाँ. हमारा फ्लायर डिफरेंट ही होता है। I हम्म. sent everybody different flyer than yours flyer, so that's why probably because my अच्छा, जहां yeah. पर रमेश जी मेरी फोटो है वहां Hmm. पर नीचे लिखा हुआ है फॉर इंडिया अगस्त 16th देखती 6 AM. देयर इट इज रिटन. No, वो there's नहीं फ्लायर गौर में किया. तो मैं फ्लायर there में इंडिया के फ्लायर टाइम के भी मतलब हाँ जो रेगुलर है वो. no, there's nothing. आप 6 Anyway, o'clock my खा गए। mistake. हम्म। वो आपका फ्लायर जुदा डिफरेंट बनाते हैं लेकिन हमारे फ्लायर में तो होता ही है इंडिया का टाइम एंड यूएस टाइम। नहीं, ये फोटो पर जाइए ना, फोटो पर. आई नो नीचे जो लिखा है ऊपर नीचे फोटो पर लिखा है जाइए और नीचे उसको टिक करिए, जरा सा टिक करिए. थोड़ा बड़ा करिए। हाँ, उसमें उधर लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 6 AM. पर मैंने तो फोटो पर पढ़ा नहीं ना, मैं तो दूसरा पढ़ा। आप तो फोटो ही निहारते रह गए. देखा, ओहो नलिनी का टाइम देखा है, दैट्स इट. यस या मैंने 7:30 देखा बस। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ. यस नहीं, बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ. आई एम चलो रियली कोई रियली बात नहीं, सॉरी माँ. नेक्स्ट टाइम वोंट हैपन। I'll try my level best. यस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कहाँ हैं? मैं Canada. आटवा, कनाडा आटवा। कनाडा ओके। हाँ Yeah, I thought so, must be, global. Must be global. Yeah. Anyway, but thank you, Nalini She ji. is a very good master, बाबा. Of course, of बहुत course, बहुत अच्छी मास्टर है ये. of course. नहीं नहीं, मैं तो अभी जूनियर हूँ। Yeah. सबके आपके आपके PSS में साथ में कोई जूनियर सभी सीनियर नहीं होता है. सभी सभी are every one of them are We are all learners. Yes. gem of the masters. या मैं 2-3 साल से मेडिटेशन ऑफ एंड ऑन कर रही थी, but I अच्छा was looking for the guidance okay okay. and now अब गाइडेंस मिली है तो That- थोड़ा सा ठीक रास्ते चलने लगी हूँ। very nice, very nice. Good, good, good. Yes, या very nice. पर एक कंप्लेन है नलिनी जी में, बोली दो. क्योंकि वो जो डिवाइस है, वहां की बात यहाँ नहीं मैडम, मैंने आपसे पहले भी कई बार रिक्वेस्ट करी है. ओके ओके और ना यहाँ की बात वहां, ना वहां की बात यहाँ. ओके, मैं फिर फोन पे बात करूंगा आपके साथ। आप अभी 2 मिनट बाद ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है. कल को करूंगी, कल को मैं सोने जा रही हूँ। डन डन. गुड नाइट. गुड गुड नाइट. नाइट। सो मास्टर्स, चलें, आज मैं आज्ञा लूंगी. sure, आप sure. लोगों को भी Thank सबको you. काफी लेट हो रहा है. यस आपको भी बहुत ही गले में भी बहुत तकलीफ है, फिर भी हमें नहीं नहीं, देखिए अब तो ठीक हो गई मैं. शुरू में होता है थोड़ा सा.
but it's okay. अभी तो मेरी 11 बजे फिर क्लास है, 11 a.m. Oh, I know you are continuously going. तो Yes, but thank दोस्तों, you so much. Thank you, Nalini. Thank you, Nalini ji. Thank you, Damayanti. Thank Thank you all. Thank you Bye, for tuning in. everyone. Good Yes. night. Good night. night. Thank Thank you, you. Indra, to all. Thank you. सबका मंगल हो, सबका मंगल। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. Thank you. Thank you. Thank you, masters, for inviting me here. और Thank इतना you. प्यार बरसाने के लिए. Thank you. You will see you again, Nalini ji. Yes, yes. Thank you. Thank you. Welcome.